السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا اپنے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کو ایک شعر یاد دلانا چاہوں گا کہ میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج کے کلاس میں میں آپ کو درخشاں حصہ دوم کے اندر شامل مضمون آریہ بھٹ اور تریگنا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، ہماری نصابی کتاب، ہماری درسی کتاب درخشاں حصہ دوم کے اندر شامل ساتھیوں مضمون آریہ بھٹ اور تریگنا، آریہ بھٹ اور تریگنا سے روبرو کراؤں گا۔ ساتھیوں، آریہ بھٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ ساتھیوں، غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور سنیں گے۔ ساتھیوں، جب ہم کسی چیز پر توجہ دیتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں ساتھیوں، تو وہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ انشاءاللہ العظیم آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو یہ ساری باتیں بھی آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ ساتھیوں، آریہ بھٹ اور تریگنا ہماری نصابی کتاب درخشاں حصہ دوم کے اندر ساتھیوں ایک مضمون شامل ہے، ایک مضمون شامل ہے جس مضمون کا نام ہے آریہ بھٹ اور تریگنا، آریہ بھٹ اور تریگنا۔ ساتھیوں، آریہ بھٹ صاحب کی پیدائش 476 عیسوی میں، ساتھیوں آریہ بھٹ صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 476 عیسوی میں۔ ساتھیوں، ان کی وفات 564 عیسوی میں، یعنی 88 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آریہ بھٹ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 476 عیسوی میں۔ وفات کب پائی ساتھیوں؟ 564 عیسوی میں۔ ساتھیوں، یعنی 88 سال کی عمر میں آریہ بھٹ صاحب۔ ساتھیوں، آریہ بھٹ جو ایک گنیتজ্ঞ تھے، آریہ بھٹ کی پیدائش 476 عیسوی میں ہوئی ساتھیوں۔ آریہ بھٹ کی پیدائش 476 عیسوی میں، آریہ بھٹ کی پیدائش ساتھیوں 476 عیسوی میں اور 564 عیسوی میں وفات پائی۔ آریہ بھٹ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 476 عیسوی میں۔ آریہ بھٹ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 476 عیسوی میں اور وفات 564 عیسوی میں۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے آریہ بھٹ صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 476 عیسوی میں، یعنی 88 سال کی عمر میں وفات پائی پاٹلی پترا پٹنہ میں ساتھیوں۔ پاٹلی پترا پٹنہ کے اندر ساتھیوں آریہ بھٹ صاحب کی پیدائش ہوئی تھی۔ آریہ بھٹ صاحب کی پیدائش کہاں ہوئی ساتھیوں؟ پٹنہ میں 476 عیسوی میں اور وفات کب ہوئی؟ 564 عیسوی میں، یعنی 88 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے آریہ بھٹ کی جائے پیدائش کے تعلق سے قرائن سے پتہ چلتا ہے ساتھیوں کہ پٹنہ کے مغرب کھگول میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ یاد رکھیں گے آریہ بھٹ صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 476 عیسوی میں۔ وفات کب ہوئی؟ 564 عیسوی میں۔ آریہ بھٹ کی جائے پیدائش کے تعلق سے قرائن سے پتہ چلتا ہے ساتھیوں کہ پٹنہ کے مغرب میں کھگول میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ آریہ بھٹ کی جائے پیدائش کے تعلق سے قرائن سے پتہ چلتا ہے ساتھیوں کہ پٹنہ کے مغرب میں، پٹنہ کے دکشن میں ساتھیوں کھگول جگہ ایک ہے۔ ساتھیوں، ایک جگہ کھگول ہے، وہیں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ہندوستان کی عہد قدیم کی تاریخ میں گپت دور کو سنہرا دور کہتے ہیں، گپت دور کو سنہرا دور کہتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں گے اس دور کے حکمراں ساتھیوں علم دوست تھے اور انصاف پسند تھے۔ آریہ بھٹ ہندوستان کی عہد قدیم کی تاریخ میں ساتھیوں گپت دور کو سنہرا دور کہتے ہیں۔ ہندوستان کی عہد قدیم کی تاریخ میں گپت دور کو سنہرا دور کہتے ہیں۔ ہندوستان کی عہد قدیم کی تاریخ میں گپت دور کو سنہرا دور کہتے ہیں۔ ہندوستان کی عہد قدیم کی تاریخ میں گپت دور کو سنہرا دور کہتے ہیں۔ اس دور کے حکمراں علم دوست اور انصاف پسند تھے۔ اس دور کے حکمراں علم دوست اور انصاف پسند تھے۔ یاد رکھیں گے ساتھیوں آریہ بھٹ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 476 عیسوی میں۔ آریہ بھٹ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 476 عیسوی میں اور وفات کب ہوئی؟ 564 عیسوی میں۔ وفات کب ہوئی؟ 564 عیسوی میں۔ ساتھیوں، 88 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں آریہ بھٹ صاحب ایک بہت بڑے ساتھیوں آریہ بھٹ صاحب ایک بہت بڑے سائنسداں تھے ساتھیوں۔ آریہ بھٹ صاحب بہت بڑے سائنسداں تھے۔ ان کی پیدائش 476 عیسوی میں ہوئی اور وفات 564 عیسوی میں پائی۔ ساتھیوں، پاٹلی پتر پٹنہ میں، پاٹلی پترا پٹنہ کے اندر ساتھیوں آریہ بھٹ کی جائے پیدائش کے تعلق سے قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ پٹنہ کے مغرب میں کھگول میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ آریہ بھٹ ساتھیوں، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑے سائنسداں تھے۔ آریہ بھٹ صاحب بہت بڑے سائنسداں تھے۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے ہندوستان کی عہد قدیم کی تاریخ میں گپت دور کو سنہرا دور کہتے ہیں۔ ہندوستان کی عہد قدیم کی تاریخ میں ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں ہندوستان کی عہد قدیم کی تاریخ میں گپت دور کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ گپت دور کو سنہرا دور کہتے ہیں۔ اس دور کے حکمراں علم دوست اور انصاف پسند تھے۔
इस दौर के हुक्मरान इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे। इस दौर के हुक्मरान इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे। इस दौर में बड़े बड़े साइंसदान भी थे। साथियों, इस दौर में बड़े बड़े साइंसदान भी थे। आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान का ताल्लुक इसी दौर से है। साथियों, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान की अहद कदीम की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। हिंदुस्तान की अहद कदीम की तारीख में, साथियों, हिंदुस्तान की अहद कदीम की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। साथियों, गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। इसी दौर में साथियों, इसी दौर में पैदा हुए बहुत बड़े साथियों साइंसदान आर्यभट्ट साहब। इसी दौर में पैदा हुए साइंसदान आर्यभट्ट साहब। साथियों, इसी दौर में साथियों पाइथागोरस पैदा हुए। इसी दौर में साथियों पाइथागोरस पैदा हुए। इनके अलावा भी साथियों बड़े बड़े साइंसदान इसी दौर में पैदा हुए। याद रखेंगे, हिंदुस्तान की अहद कदीम की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। साथियों, हिंदुस्तान की अहद कदीम की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। इस दौर के हुक्मरान इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे। साथियों, गुप्त दौर के हुक्मरान इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे। इस दौर में बड़े बड़े साइंसदान भी थे। साथियों, इस दौर में बड़े बड़े साइंसदान भी थे। आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान का ताल्लुक इसी दौर से है। आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान का ताल्लुक साथियों गुप्त दौर से है, यानी इसी दौर से है। याद रखेंगे साथियों, आर्यभट्ट साहब अपने दौर के माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाज और इल्मुल जबर थे। साथियों, आप याद रखेंगे, आर्यभट्ट साहब अपने दौर के माहिर इल्म रियाज, माहिर इल्म नुजूम, साथियों माहिर इल्मुल जबर थे। माहिर इल्मुल जबर थे। आर्यभट्ट अपने दौर के माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाज और माहिर इल्मुल जबर थे। आर्यभट्ट अपने दौर के माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाज और इल्मुल जबर थे। साथियों, आर्यभट्ट अपने दौर के माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाज और इल्मुल जबर थे। कहा जाता है कि मशहूर माहिर आलिम रियाज। साथियों, मशहूर माहिर आलिम रियाज पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। साथियों, आप इस कौल को याद रखेंगे। कहा जाता है कि मशहूर आलिम रियाज, मशहूर आलिम रियाज पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की थी? साथियों, पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। साथियों, आप याद रखेंगे, खगोल के मानी इल्म नुजूम से होता है। याद रखेंगे, खगोल के मानी इल्म नुजूम से होता है। खगोल के मानी इल्म नुजूम से होता है और आर्यभट्ट का ताल्लुक इल्म नुजूम से था। साथियों, इसलिए क़राइन खगोल के मानी इल्म नुजूम से होता है। खगोल के मानी इल्म नुजूम से होता है और आर्यभट्ट का ताल्लुक इल्म नुजूम से था। और आर्यभट्ट का ताल्लुक साथियों इल्म नुजूम से था। इसलिए करीने कयास यही है कि खगोल ही आर्यभट्ट की जाए पैदाइश है। साथियों, इसीलिए करीने कयास यही है कि खगोल में ही आर्यभट्ट साहब की पैदाइश हुई थी। याद रखेंगे साथियों, इसलिए करीने कयास यही है साथियों। इसीलिए अंदाजा लगाया जाता है या अनुमान लगाया जाता है साथियों, आर्यभट्ट साहब की पैदाइश कहाँ है? आर्यभट्ट साहब की पैदाइश कहाँ है? साथियों, खगोल में हुई। आर्यभट्ट अपने दौर के माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाज और इल्मुल जबर थे। कहा जाता है कि मशहूर माहिर आलिम रियाज पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की थी? आर्यभट्ट साहब ने की थी। कहा जाता है कि मशहूर माहिर आलिम रियाज, साथियों मशहूर माहिर आलिम रियाज पाइथागोरस की, साथियों पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की थी? आर्यभट्ट ने। खगोल के मानी इल्म नुजूम से होता है। खगोल के मानी इल्म नुजूम से होता है। साथियों, याद रखेंगे आप, खगोल के मानी इल्म नुजूम से होता है और आर्यभट्ट का ताल्लुक इल्म नुजूम से था। इसलिए करीने कयास यही है कि खगोल ही आर्यभट्ट की जाए पैदाइश है। इसलिए करीने कयास यही है कि खगोल आर्यभट्ट की जाए पैदाइश है। साथियों, साइंस के मुहक्किकीन के मुताबिक आर्यभट्ट ने पटना शहर से 3 किलोमीटर जुनूब में, साथियों यानी दक्षिण में, साथियों यानी जुनूब के अंदर में सूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी कारनामों के लिए एक तजुर्बागाह बनाया था। याद रखेंगे, साइंस के मुहक्किकीन के मुताबिक आर्यभट्ट ने पटना शहर से 3 किलोमीटर जुनूब में, साथियों सूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी कामों के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था, एक तजुर्बागाह बनाया था। याद रखेंगे साथियों, साइंस के मुहक्किकीन के मुताबिक आर्यभट्ट ने पटना शहर से 3 किलोमीटर जुनूब में, साथियों यानी दक्षिण में सूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी कामों के लिए तजुर्बागाह बनाया था। और तरेगना में बैठकर आर्यभट्ट ने अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। याद रखेंगे साथियों, साइंस के मुहक्किकीन के मुताबिक आर्यभट्ट ने पटना शहर से 3 किलोमीटर जुनूब में सूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी कामों के लिए एक तजुर्बागाह बनाया था। और तरेगना में बैठकर आर्यभट्ट ने अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। साथियों, आप याद रखेंगे, तरेगना में बैठकर ही साथियों आर्यभट्ट ने अपनी मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा था। याद रखेंगे, साइंस के मुहक्किकीन के मुताबिक आर्यभट्ट ने पटना शहर से 3 किलोमीटर जुनूब में
सूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी कामों के लिए एक तजुर्बागाह बनाया था साथियों। और तरेगना में बैठकर आर्यभट्ट ने अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा साथियों। आर्य सिद्धांत और तंत्र को किसने लिखा? आर्यभट्ट ने लिखा। आर्य सिद्धांत और तंत्र को किसने लिखा? आर्यभट्ट ने लिखा। आर्य सिद्धांत और तंत्र को किसने लिखा? आर्यभट्ट ने लिखा। याद रखेंगे, आर्यभट्ट दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने अपने तहकीकात से यह साबित किया कि जमीन गोल है। साथियों, बहुत बड़ी बात आप याद रखेंगे, आर्यभट्ट ने ही इस दुनिया वालों को बताया था कि जमीन गोल है। जमीन कैसी है? जमीन गोल है। साथियों, इसने तहकीक करके साथियों अपने तहकीकात से साबित कर दिया। का पहला साइंसदान था जिसने अपने तहकीकात से साबित किया कि जमीन गोल है। आर्यभट्ट दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने अपने तहकीकात से, अपने रिसर्च से साथियों ये साबित कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि जमीन गोल है। महव पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है और अपने महव पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है। साथियों, आप इस इबारत पर गौर कीजिए, आर्यभट्ट दुनिया का पहला साइंसदान था। साथियों, आर्यभट्ट दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने अपनी तहकीकात से यह साबित कर दिया, जिसने अपने तहकीकात से यह साबित कर दिया था साथियों, ये साबित कर दिया था कि जमीन गोल है और अपने महव पर घूमती रहती है। आर्यभट्ट दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने यह साबित कर दिया था साथियों, जिसने अपनी तहकीकात से, अपने रिसर्च से यह साबित कर दिया था कि जमीन गोल है, ये जमीन गोल है और अपने महव पर घूमती रहती है, और अपने महव पर घूमती रहती है और सूरज की गर्दिश करती है, और सूरज की गर्दिश करती है। साथियों, आप इस इबारत पर गौर कीजिए, आर्यभट्ट दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने अपने तहकीकात से साबित कर दिया कि जमीन गोल है और अपने महव पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है। साथियों, आप याद रखेंगे, आर्यभट्ट दुनिया का पहला साइंसदान था। आर्यभट्ट दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने यह तहकीकात से साबित कर दिया था कि जमीन गोल है और अपने महव पर घूमते हुए, साथियों, अपने महव पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है। साथियों, आर्यभट्ट ने सबसे पहले सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात फराहम कराए। साथियों, आर्यभट्ट दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने अपने तहकीकात से साबित किया कि जमीन गोल है और अपने महव पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात फराहम कराए। इल्म रियाज में आलमी सतह पर निज़ाम एशारिया, साथियों याद रखेंगे आप इस इबारत को, आज इल्म रियाज में आलमी सतह पर निज़ाम एशारिया, डेसिमल सिस्टम। साथियों, डेसिमल सिस्टम की अहमियत और उफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता है, बल्कि साइंस के तमाम शोबों में निज़ाम एशारिया की, डेसिमल सिस्टम की अहमियत मुसल्लम है, बल्कि साइंस के तमाम शोबों में निज़ाम एशारिया की अहमियत मुसल्लम है। साइंसी तहकीक का ये अजीम कारनामा आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान ने अंजाम दिया। साइंसी तहकीक का ये अजीम कारनामा आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान ने अंजाम दिया। साथियों, इस इबारत को फिर गौर से सुनिए, आज इल्म रियाज में आलमी सतह पर निज़ाम एशारिया, डेसिमल सिस्टम की अहमियत और उफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता है, बल्कि साइंस के तमाम शोबों में, साथियों आप याद रखेंगे, साइंस के तमाम शोबों में निज़ाम एशारिया की अहमियत मुसल्लम है। साइंसी तहकीक का यह अजीम कारनामा आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान ने साथियों अंजाम दिया है। आज इल्म रियाज में आलमी सतह पर निज़ाम एशारिया, डेसिमल सिस्टम की अहमियत और उफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता है, बल्कि साइंस के तमाम शोबों में निज़ाम एशारिया की, साथियों, डेसिमल सिस्टम की अहमियत मुसल्लम है। साइंसी तहकीक का यह अजीम कारनामा आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान ने अंजाम दिया। साइंसी तहकीक का यह अजीम कारनामा आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान ने अंजाम दिया। इल्म रियाज में सफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने ही पेश किया था। याद रखेंगे, इल्म रियाज में सफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने पेश किया था। इल्म नजूम के ताल्लुक से भी आर्यभट्ट की कई अहम तहकीकात हैं। इल्म नजूम के ताल्लुक से भी आर्यभट्ट की कई अहम तहकीकात हैं। इल्म रियाज में सफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने ही पेश किया। याद रखेंगे साथियों, मजीद इल्म के लिए मैं बता रहा हूँ, इल्म रियाज में सफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने ही पेश किया था। इल्म नजूम के ताल्लुक से भी आर्यभट्ट की कई अहम तहकीकात हैं। इल्म नजूम के ताल्लुक से आर्यभट्ट की कई अहम तहकीकात हैं। मौजूदा दौर के साइंसदान भी सूरज ग्रहण 2009 को देखने के लिए, साथियों याद रखेंगे, मौजूदा दौर के साइंसदान भी सूरज ग्रहण 2009 को देखने के लिए सही जगह की तलाश हो जुस्तजू आर्यभट्ट की किताबों के मुताला से ही क्या था। याद रखेंगे साथियों, इल्म रियाज में सफर का तस्वुर किसने पेश किया? इल्म रियाज में सफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने ही पेश किया था। इल्म नजूम के ताल्लुक से साथियों आर्यभट्ट की कई अहम तहकीकात हैं। साथियों, इल्म नजूम के ताल्लुक से आर्यभट्ट की कई अहम तहकीकात हैं। मौजूदा दौर के साइंसदान भी सूरज ग्रहण 2009 को देखने के लिए साथियों सही जगह की तलाश हो जुस्तजू आर्यभट्ट की किताबों के मुताला से ही क्या। साथियों, आप याद रखेंगे, मौजूदा दौर के साइंसदान भी सूरज ग्रहण 2009 को देखने के लिए सही जगह की तलाश हो जुस्तजू आर्यभट्ट की किताबों के मुताला से ही क्या था। आर्यभट्ट ने सूरज के ताल्लुक से मुसल्लमा उसूल पेश किया। साथियों, आर्यभट्ट ने सूरज के ताल्लुक से ये मुसल्लमा उसूल पेश किया कि हमारी जमीन सूरज का तवाफ करती है, ये जमीन सूरज का तवाफ करती है और सूरज अपनी जगह पर साकित है। साथियों, सूरज अपनी जगह पर साकित है
آپ یاد رکھیں گے ساتھیوں یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں ساتھیوں یہ سورج کا طواف کرتی ہے، ساتھیوں یہ زمین سورج کا طواف کرتی ہے، ساتھیوں یہ زمین سورج کا طواف کرتی ہے اور سورج اپنی جگہ پر ساکت ہے، سورج اپنی جگہ پر ساکت ہے۔ آریہ بھٹ نے سورج کے تعلق سے یہ مسلم اصول پیش کیا کہ ہماری زمین سورج کا طواف کرتی ہے اور سورج اپنی جگہ پر ساکت ہے۔ ساتھیوں سورج اپنی جگہ پر فکس ہے۔ آریہ بھٹ نے سورج کے تعلق سے یہ مسلم اصول پیش کیا کہ ہماری زمین سورج کا طواف کرتی ہے۔ ساتھیوں یاد رکھیں گے یہ زمین سورج کا طواف کرتی ہے اور سورج اپنی جگہ پر ساکت ہے اور سورج اپنی جگہ پر ساکت ہے۔ یاد رکھیں گے آریہ بھٹ کی کتابوں میں نظام شمسی کے سیاروں کی گردش، دوری اور مختلف تاروں کی حرکات و سکنات پر عجیب و غریب معلومات موجود ہیں۔ یاد رکھیں گے ساتھیوں ابھی میں آپ کو ہماری نصابی کتاب درشاہ سادوم کے اندر میں شامل مضمون آریہ بھٹ اور تریگنا کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ آریہ بھٹ اور تریگنا کے بارے میں ساتھیوں بتا رہا ہوں۔ آریہ بھٹ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 476 عیسوی میں۔ آریہ بھٹ صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 476 عیسوی میں۔ وفات کب ہوئی ساتھیوں؟ 564 عیسوی میں۔ 88 سال کی عمر میں وفات پائی ساتھیوں، 88 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آریہ بھٹ کی جائے پیدائش کے تعلق سے قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پٹنہ کے مغرب میں کھگول میں ان کی پیدائش ہوئی ساتھیوں۔ آریہ بھٹ کی جائے پیدائش کے تعلق سے قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیدائش ساتھیوں پٹنہ کے مغرب میں کھگول میں ہوئی تھی۔ ہندوستان کے عہد قدیم کی تاریخ میں گپت دور کو سنہرا دور کہا جاتا ہے ساتھیوں۔ ہندوستان کے عہد قدیم کی تاریخ میں گپت دور کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ گپت دور کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور کے حکمراں جو بھی ہوتے تھے ساتھیوں علم دوست ہوتے تھے، علم کو چاہنے والے ہوتے تھے ساتھیوں۔ اس دور کے حکمراں جو بھی ہوتے تھے علم دوست تھے ساتھیوں، انصاف کرنے والے ہوتے تھے اور اس دور کے حکمراں علم دوست اور انصاف پسند تھے۔ اس دور میں بڑے بڑے سائنسداں بھی تھے ساتھیوں۔ بڑے جیسے عظیم سائنسداں کا تعلق اسی دور سے ہے۔ آریہ بھٹ اپنے دور کے ماہر علم نجوم، علم ریاض اور علم الجبر تھے۔ یاد رکھیں گے آپ آریہ بھٹ اپنے دور کے ماہر علم نجوم، ماہر علم ریاض، ماہر علم الجبر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور ماہر عالم ریاض پائتھاگورس کی رہنمائی ساتھیوں آریہ بھٹ نے کی تھی۔ یاد رکھیں گے آپ پائتھاگورس کی رہنمائی کس نے کی تھی؟ آریہ بھٹ نے کی تھی۔ پائتھاگورس کی رہنمائی کس نے کی تھی؟ آریہ بھٹ نے کی تھی۔ کھگول کے معنی علم نجوم سے ہوتا ہے اور آریہ بھٹ کا تعلق علم نجوم سے تھا ساتھیوں، اس لیے قرین قیاس یہی لگایا جاتا ہے ساتھیوں کہ کھگول میں ہی آریہ بھٹ صاحب کی جائے پیدائش ہے۔ اسی لیے قرین قیاس یہی لگایا جاتا ہے کہ آریہ بھٹ صاحب کی جائے پیدائش کہاں ہے ساتھیوں؟ کھگول میں ہے۔ سائنس کے محققین کے مطابق آریہ بھٹ نے پٹنہ شہر سے 3 کلومیٹر جنوب میں، 3 کلومیٹر دکشن میں، سوری کے نزدیک ساتھیوں، کہاں پر؟ سوری کے نزدیک تریگنا میں اپنے تحقیقی کاموں کے لیے ایک تجربہ گاہ بنایا تھا۔ سائنس کے محققین کے مطابق آریہ بھٹ نے پٹنہ شہر سے 3 کلومیٹر جنوب میں سوری کے نزدیک تریگنا میں اپنے تحقیقی کاموں کے لیے ایک تجربہ گاہ بنایا تھا اور تریگنا میں ہی بیٹھ کر ساتھیوں آریہ بھٹ نے اپنے مشہور تصنیف آریہ سدھانت اور تنتر کو لکھا۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے تریگنا میں ہی بیٹھ کر آریہ بھٹ صاحب نے آریہ سدھانت اور تنتر کو لکھا جو ان کی مشہور تصنیف ہے ساتھیوں، آریہ بھٹ صاحب نے تریگنا میں ہی بیٹھ کر آریہ سدھانت اور تنتر کو لکھا ساتھیوں، یہ ان کی مشہور تصنیف ہے۔ اسی طریقے سے آریہ بھٹ دنیا کا پہلا سائنسداں تھا جس نے اپنی تحقیقات سے یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے۔ آریہ بھٹ صاحب دنیا کا پہلا سائنسداں تھا جس نے اپنے تحقیق سے ثابت کر دیا کہ زمین گول ہے اور اپنے محور پر گھومتے ہوئے سورج کی گردش کرتی ہے اور اپنے محور پر گھومتے ہوئے سورج کی گردش کرتی ہے آریہ بھٹ نے سب سے پہلے سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرائیں۔ ساتھیوں یاد رکھیں گے آریہ بھٹ نے سب سے پہلے سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرائیں۔ آج علم ریاض میں عالمی سطح پر نظام اعشاریہ ڈیسیمل سسٹم، یاد رکھیں گے ساتھیوں نظام اعشاریہ کو کہتے ہیں ڈیسیمل سسٹم۔ نظام اعشاریہ کو کیا کہیں گے؟ ڈیسیمل سسٹم۔ آج عالمی سطح پر نظام اعشاریہ یعنی ڈیسیمل سسٹم کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ساتھیوں، بلکہ سائنس کے تمام شعبوں میں نظام اعشاریہ کی اہمیت مسلم ہے۔ سائنسی تحقیق کا یہ عظیم کارنامہ آریہ بھٹ جیسے عظیم سائنسداں نے انجام دیا۔
साइंसी तहकीक का यह अजीम कारनामा आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान ने अंजाम दिया। याद रखेंगे आप, इल्म रियाज में सफर का तस्वुर किसने पेश किया था? आर्यभट्ट ने पेश किया था। इल्म नजूम के ताल्लुक से साथियों आर्यभट्ट की कई अहम तहकीकात हैं। याद रखेंगे, इल्म नजूम के ताल्लुक से आर्यभट्ट साहब की कई अहम तहकीकात हैं। मौजूदा दौर के साइंसदान ने भी साथियों सूरज ग्रहण 2009 को देखने के लिए सही जगह की तलाश और जुस्तजू आर्यभट्ट की किताबों के मुताबिक ही क्या था साथियों। मौजूदा दौर के साइंसदान भी सूरज ग्रहण 2009 को देखने के लिए सही जगह की तलाश हो जुस्तजू आर्यभट्ट की किताबों के मुताला से ही क्या था। क्यों आप याद रखेंगे, आर्यभट्ट ने सूरज के ताल्लुक से यह मुसल्लम उसूल पेश किया, हमारी जमीन सूरज का तवाफ करती है। आर्यभट्ट ने सूरज के ताल्लुक से ये मुसल्लमा उसूल पेश किया कि हमारी जमीन सूरज का तवाफ करती है और सूरज अपने आप में साकित है। आर्यभट्ट की किताबों में निजाम शमसी के सैयारों की गर्दिश, दूरी और मुख्तलिफ तारों के हरकत और सकनात पर अजीब व गरीब मालूमात मौजूद है। आर्यभट्ट की किताबों में निजाम शमसी की सैयारों की गर्दिश, दूरी और मुख्तलिफ तारों की हरकत और सकनात पर अजीब व गरीब मालूमात मौजूद है। साथियों, मैं खुदा की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि अभी जो मैं आपको आर्यभट्ट और तरेगनाम के बारे में बता रहा हूँ आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों ये क्लास आपके लिए काफी अहम है। ये क्लास आपके लिए साथियों काफी खास है, इसे आप मिस न करेंगे। साथियों आप याद रखेंगे, ये क्लास आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। साथियों इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली मरतबा जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं साथियों, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथियों बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को इसलिए दबा दीजिए ताकि मैं जब भी आपके लिए नए नए वीडियोस अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ग्रहण किसे कहेंगे? किसी सैयारा या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। साथियों आप याद रखेंगे, किसी सैयारा या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। जमीन के बाशिंदों को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। एक को साथियों सूरज ग्रहण कहते हैं, दूसरे को चांद ग्रहण कहते हैं। साथियों हम जमीन के बाशिंदों को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। हम जमीन पर बसने वाले बाशिंदों को दो तरह के ग्रहण देखने को मिलते हैं। साथियों याद रखेंगे आप, हम जमीन के बाशिंदों को दो तरह की ग्रहण से वास्ता पड़ता है। साथियों एक सूरज ग्रहण, दूसरा चांद ग्रहण। ये ग्रहण उस वक्त वाक़ई होते हैं जब एक सैयारा या सितारा किसी दूसरे सितारे या सैयारे पर अपना साया डालता है। हम जमीन के बाशिंदों को दो तरह की ग्रहण से वास्ता पड़ता है। सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण। ये ग्रहण उस वक्त वाक़ई होते हैं साथियों जब एक सैयारा या सितारा किसी दूसरे सितारे या सैयारे पर अपना साया डालता है। याद रखेंगे ये ग्रहण कब होता है? ये ग्रहण उस वक्त वाक़ई होते हैं जब एक सैयारा या सितारा किसी दूसरे सितारे या सैयारे पर साथियों अपना साया डालते हैं। ये ग्रहण उस वक्त वाक़ई होते हैं जब एक सैयारा या सितारा किसी दूसरे सितारे या सैयारे पर अपना साया डालता है। साथियों उस वक्त ये सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण का मामला पेश आता है। चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है। चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है। साथियों चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है, इसलिए चांद और सूरज के इस तवाफ के दौरान चांद का जमीन और सूरज का दरमियान आना लाजमी अम्र है। इसलिए चांद और सूरज के इस तवाफ के दौरान चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आना लाजमी है। याद रखेंगे आप, चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है। याद रखेंगे साथियों, चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है, इसलिए चांद और सूरज के तवाफ के दौरान चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आना लाजमी अम्र है। साथियों ऐसी सूरत में चांद का जुज़वी या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है और सूरज की रोशनी जमीन पर आने में मज़ाहमत पैदा करती है, जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण होता है। साथियों सूरज ग्रहण एक जोग्राफियाई वाक़या है। चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है, इसलिए चांद और सूरज के इस तवाफ के दौरान चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आना लाजमी है।
चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आना लाजमी है साथियों, लाजमी अम्र है। ऐसी सूरत में चांद का जुज़वी या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है और सूरज की रोशनी जमीन पर आने में मज़ाहमत पैदा करती है, और सूरज की रोशनी जमीन पर आने में साथियों मज़ाहमत पैदा करती है, जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण होता है। सूरज ग्रहण होता है साथियों, जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण होता है। सूरज ग्रहण एक जोग्राफियाई वाक़या है। सूरज ग्रहण एक जोग्राफियाई वाक़या है साथियों, जो तारीख की इब्तिदा से होता हुआ आ रहा है साथियों। सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण ये जोग्राफियाई वाक़या है, याद रखेंगे साथियों, जो तारीख की इब्तिदा से होता हुआ आ रहा है। याद रखेंगे आप। तरेगना पटना से जनूब जानिब में 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीजन में वाक़ई है। तरेगना पटना से जनूब जानिब में साथियों, पटना से दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीजन में वाक़ई है। और इसी मुनासिबत से पटना गया रेलवे लाइन का नाम साथियों, इसी मुनासिबत से पटना गया रेलवे लाइन में सूरी स्टेशन का नाम तरेगना स्टेशन रखा गया है। सूरी स्टेशन का नाम तरेगना स्टेशन रखा गया है। मसूरी स्टेशन से मोहल्ला रहमतगंज शमूली सब डिवीजन के तमाम सरकारी दफातर तरेगना के ही हल्का में आते हैं। शमूली सब डिवीजन के तमाम सरकारी दफातर तरेगना के ही हल्का में आते हैं। साथियों आप याद रखेंगे, तरेगना पटना से जनूब जानिब में 30 किलोमीटर की दूरी पर साथियों वाक़ई है। तरेगना पटना से जनूब जानिब में 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीजन में वाक़ई है। याद रखेंगे, तरेगना कहाँ है? पटना से जनूब में, पटना से दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीजन में साथियों, अनुमंडल मसूरी सब डिवीजन में वाक़ई है। और इसी मुनासिबत से पटना गया रेलवे लाइन में सूरी स्टेशन का नाम तरेगना स्टेशन रखा गया है। सूरी स्टेशन का नाम तरेगना रखा गया है। सूरी स्टेशन का नाम तरेगना रखा गया है। मसूरी स्टेशन से मोहल्ला रहमतगंज तक शमूली सब डिवीजन के तमाम सरकारी दफातर तरेगना के ही हल्का में आते हैं। साथियों याद रखेंगे, मसूरी स्टेशन से मोहल्ला रहमतगंज तक शमूली सब डिवीजन के तमाम सरकारी दफातर तरेगना के ही हल्का में आते हैं। साथियों मैं आपको मजीद इल्म के लिए बताऊं, तरेगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूर्व में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। तरेगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी, मैं आपको मजीद इल्म के लिए बताऊं साथियों, तरेगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूर्व में पुनपुन नदी फैला हुआ। आप याद रखेंगे, तरेगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूर्व में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। तरेगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूर्व में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। तरेगना हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी तारे गिनना है। साथियों मैं आपको बताऊं, तरेगना के मानी तारे गिनने के हैं। तरेगना के मानी तारे गिनने के हैं। साथियों याद रखेंगे, तरेगना हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी तारे गिनने के हैं। तरेगना हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी तारे गिनने के हैं। इसी वजह से इस मुकाम का नाम तरेगना रखा गया था। आर्यभट्ट ने 60 फीट ऊंची एक टीला बनाया था साथियों, जिस पर बैठकर वह रात को तारों और सितारों के बारे में तहकीकी काम क्या करता था। निजाम शमसी की रफ्तार सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात आर्यभट्ट ने तरेगना में ही हासिल किए। आर्यभट्ट ने 60 फीट ऊंची एक टीला बनाया जिस पर बैठकर वह रातों को तारों और सितारों के बारे में तहकीकी काम क्या करता था। आर्यभट्ट ने 60 फीट ऊंची एक टीला बनाया था साथियों। आर्यभट्ट ने 60 फीट ऊंची एक टीला बनाया था। अपनी तहकीकात के नताइज को अपनी किताब में तहरीर किए, जो आज के साइंसदानों के लिए रहनुमाई का काम करती है। साथियों इस इबारत को आप गौर से सुनिए। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात आर्यभट्ट ने तरेगना में ही हासिल किए। आर्यभट्ट ने 60 फीट ऊंची एक टीला बनाया जिस पर बैठकर वह रात को तारों और सितारों के बारे में तहकीकी काम क्या करता था। निजाम शमसी की रफ्तार, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात आर्यभट्ट ने तरेगना में ही हासिल किए। अपनी तहकीकात के नताइज को अपनी एक किताब में साथियों तहरीर किए, जो आज के साइंसदानों के लिए रहनुमाई का काम करती है। साथियों अभी मैं आपको आर्यभट्ट और तरेगना मजमून के बारे में बता रहा था, इसके अंदर मैंने आपको आर्यभट्ट के बारे में बताया। आर्यभट्ट साहब की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी को। साथियों अभी मैं आपको हमारी निसाबी किताब दरख्शास्त के अंदर में शामिल मजमून साथियों आर्यभट्ट और तरेगना के बारे में बताया, और खुदा की जात से उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अगर कोई
कोई आपसे पूछे आर्य भट्ट साहब की पैदाइश कब हुई थी 476 ईस्वी में। साथियों अगर कोई वफात के बारे में पूछे तो 564 ईस्वी में 88 साल की उम्र में वफात पाई। साथियों 88 साल की उम्र में वफात पाई। अब मैं आपको लुगत के अंदर साथियों लुगत के अंदर चंद अल्फाज मानी से रूबरू कराता हूँ। साथियों अब मैं आपको आखिर में लुगत में चंद अल्फाज मानी से रूबरू कराता हूँ और उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप गौर से सुनेंगे। आयत के मानी साथियों जमाना के हैं। आयत मानी जमाना, आयत मानी जमाना, कदीम के मानी पुराना, कदीम के मानी पुराना। इल्म दोस्त साथियों इल्म से दिलचस्पी रखने वाले, इल्म दोस्त किसको कहते हैं? इल्म से दिलचस्पी रखने वाले को। इंसाफ पसंद करने वाले, इंसाफ को पसंद करने वाले। इंसाफ पसंद किसको कहेंगे? इंसाफ को पसंद करने वाले को। साइंसदान इल्म साइंस का माहिर, साइंसदान इल्म साइंस का माहिर। तवाफ साथियों किसी चीज का चारों तरफ चक्कर लगाना और घूमना। साथियों आपका याद रखेंगे तवाफ के मानी साथियों किसी चीज के चारों तरफ घूमना। तवाफ के मानी किसी चीज के चारों तरफ घूमना। तवाफ के मानी किसी चीज के चारों तरफ घूमना। इल्म रियाज, इल्मुल हिसाब, इल्म रियाज के मानी इल्मुल हिसाब के हैं। इल्म रियाज के मानी इल्मुल हिसाब के हैं। पाइथागोरस के मानी साथियों एक मशहूर साइंसदान, पाइथागोरस के मानी एक मशहूर साइंसदान का नाम इल्म नुजूम, सितारों से मुताल्लिक इल्म, इल्म नुजूम सितारों से मुताल्लिक इल्म। आर्यभट्ट साथियों हिंदुस्तान का एक मशहूर साइंसदान। आर्यभट्ट के मानी क्या होगा? आर्यभट्ट के मानी हिंदुस्तान का एक मशहूर साइंसदान। आर्यभट्ट के मानी हिंदुस्तान का एक मशहूर साइंसदान। वज़ा करना, इजाद करना, वज़ा करना, इजाद करना। मुहक्किक साथियों कहते हैं तहकीक करने वाले को। याद रखेंगे आप मुहक्किक कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में रिसर्चर कहते हैं। साथियों इसको इंग्लिश में हम रिसर्चर बोलते हैं। मुहक्किक कहते हैं तहकीक करने वाले को। तजुर्बागाह साइंसी तजुर्बों का मरकज, तजुर्बागाह साइंसी तजुर्बों का मरकज। महवर में साथियों धूरी, महवर मानी धूरी होता है। तजुर्बागाह साइंसी तजुर्बों का मरकज। महवर कहते साथियों धूरी को, महवर कहते धूरी को। अज सरनो नए सिरे से, अज सरनो के मानी नए सिरे से। इसी तरीके से साथियों आप याद रखेंगे उफाजियत के मानी होता है साथियों फायदा, उफाजियत के मानी फायदा, उफाजियत के मानी फायदा, फायदे का अंदाजा। उफाजियत के मानी क्या होगा? फायदा और फायदे का अंदाजा। शोभा साथियों गोशा, शोभा के मानी गोशा होता है तालीम का महदूद हल्का। साथियों शोभा तालीम का महदूद हल्का। जुस्तजू के मानी तलाश के हैं, जुस्तजू के मानी तलाश के हैं। जुजू के मानी थोड़ा होता है, टुकड़ा होता है। जुजू के मानी थोड़ा होता है, टुकड़ा होता है। इसी तरीके से साथियों अम्र के मानी मामला, अम्र के मानी मामला। साथियों अभी मैं आपको हमारी निसाबी किताब दरख्शास्त के अंदर में शामिल मजमून आर्यभट्ट और त्रेगना के बारे में बता रहा था और उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों अभी जो मैंने आपको मजमून आर्यभट्ट और त्रेगना के बारे में पढ़ाया, अगर कोई बात आपको समझ में ना आए, साथियों अगर कोई बात ऐसी हो जो आपकी समझ में ना आई, अभी मैंने आपको हमारी निसाबी किताब दरख्शास्त के अंदर में शामिल मजमून आर्यभट्ट और त्रेगना के बारे में बताया। साथियों अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो साथियों आप कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीम आगे की क्लास में उस पर बात करेंगे। साथियों आर्यभट्ट और त्रेगना ये मजमून मुकम्मल आज नहीं हो सकेगा साथियों, इंशाअल्लाह अज़ीम कल इसको मुकम्मल करूंगा। अब आखिर में आप तमाम साथियों से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मजीद तलबा इससे फवाइद हासिल कर सकें। साथियों अब दीजिए इजाजत, कल फिर मिलता हूँ नए वीडियोस के साथ और नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।